ahead to the last but not the least segment of our panel discussions round today. Shark Tank नहीं देखा तो क्या देखा? कहना ये बहुत सही है कि Shark Tank India नहीं देखा तो क्या देखा, and saying so is very true as the show has successfully educated and enlightened every household of our country to this fast moving and emerging startup industry. Bagging Shark Tank has become a good milestone for startups, and every founder dreams to be there. Right? So, our next set of speakers are those who have made it to the Shark Tank India platform, and they are here to share their experience and insight of being on the other side of the screen and how does it feel. So, I'm very delighted to welcome Mr. Saurabh Agarwal, founder and CEO of Grow It, Mr. Shreyant Daga, co-founder of OLL.co, Mr. Karthik Sabhrewal, founder and CEO at Upthrust Sports. And to moderate the entire panel, I would like to welcome Mr. Jatin Chaudhary. Please give them a round of applause as they come on the stage and share their valuable insights about how does it feel like and what is the story behind the screen of getting into Shark Tank or making up to the screen. Thank you. Thank you so much. You can just give a brief introduction about your business, the season that you were part of, what happened and what was the deal that you got. Saurabh. Yeah, so I'm Saurabh Agarwal, founder and CEO of Grow It India. So I was present in season 2 and we were able to get a deal from Piyush and Namita, which was a successful deal. In one line about Grow It, So we basically help farmers to double their farm output through farm mechanization. It's through the products and the services that we do. It's physical products that the farmers use in order to go away from the pesticides and chemical-based farming and move towards the natural farming methods. Okay, awesome. Big round. We'll try create some energy. Of course, the energy was far bigger than in the earlier sessions, but Shreyant, the similar kind of question. Sure. So OLL is a platform where you can learn any skill live and practically. So today we're working with schools offline, upgrading them, adding subjects that students really want to learn practically. So that's mainly about OLL and yeah. Shreyant, आप मुंबई से आए हो? Yeah, मैं मुंबई से. आपको deal क्या मिला था? Piyush and Vinita gave the deal and yeah, I'm 18 years old also. Okay, you are 18 years old. Awesome. So Karthik, now that you have to tell how old are you? Hello everyone, I am Karthik Sabharwal, founder of Upthrust Esports, and I am 22 years old. We got featured in Shark Tank season 2 recently, and like we have a business startup of esports and gaming. Like we are an organization, we organize esports events and build IPs around it and produce it as well. So like just like IPL, like BCCI owns an IP called IPL, where players from different countries participates under and play under a franchise, and they onboard sponsors and all for the IPL. Similarly, the scenario works for esports. Here we create esports IPs with esports games. Let it be PC games, let it be mobile games, let it be console games, and we build an IP around it, and we onboard sponsors. We also produce it. Wow. Okay, awesome. Thank you so much, Karthik. So idea of this session is to get founders' perspectives, sharks के perspectives तो है ही. So Karthik, in your case, जब आप apply कर रहे थे, and I'm sure that a lot of people who are here, they may apply for the season 3. तो आपको confidence, यानी apply कैसे किया था? Confidence थे आप पहले कि मैं apply करूँगा, select हो जाऊँगा, या किसी ने nudge किया, नहीं apply करो? And any anecdote you can pick up from that entire journey where things were very ambiguous and then suddenly you got believed ना अभी तो हो जाएगा. Anything you can pick that up? So basically season 1 जब follow करा तो मेरी company उतनी बड़ी नहीं थी, तो my mom suggested कि अगर तुम्हारा business अच्छा जाता है तो second season के लिए apply करना.
और सीज़न 1 का काफ़ी अच्छा क्रेज़ आ गया था। जैसे अभी जब अमन सर आए थे वहाँ पे सेशन में बोला था कि शार्क टैंक का एकदम से इतना क्रेज़ हो गया कि फैमिली डिनर के टाइम पे लोग आपस में डिस्कस वगैरह करते हैं, तो वैसे ही कुछ हमारा भी डिस्कशन होता था। और जब सीज़न 2 के फॉर्म्स आए तो मैंने अप्लाई करा उस चीज़ में, मेरे को लगा नहीं था कि हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख लोगों ने रजिस्टर करा था। सो वॉज क्वाइट सरप्राइज कि अगर हो गया तो लाइक और ये काफ़ी न्यू इंडस्ट्री भी है हमारी ई स्पोर्ट्स की। तो लाइक 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली, एक ऑनलाइन वाला, देन यू नीड टू गो थ्रू द लाइक प्री ऑडिशन स्टफ, ऑफलाइन होता है जो वहाँ पे आपको बुलाते हैं और उसके बाद आपकी पिच वगैरह सुनते हैं, आपके बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो लुकआउट करते हैं कि आपका क्या कैसा धंधा बनाया है आपने बेसिकली। तो सेकेंड राउंड तक भी आपको कंफर्मेशन मिलने के लिए 1 महीना लगता है कि हाँ आप सिलेक्ट हुए हो फॉर द टीवी राउंड और नॉट। तो उस बीच में काफ़ी टेंशन और वो रहती है कि यार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और फिर जाके हम लोग का लाइक अराउंड सितंबर में शूट स्टार्ट हुआ था और लाइक इट वेंट फॉर 2 मंथ्स शूट। और उसके बाद जब ये ब्रॉडकास्ट हुआ फेब में तो सिमिलर फील आ रहा था कि लाइक दे डोंट टेल, द सोनी टीम डोंट टेल एनीवन कि आपका एपिसोड एयर हो रहा है या ना हो, आपको डील मिले या ना मिले, इट्स नॉट 100% श्योर कि आपका एपिसोड विल गेट ऑन एयर और नॉट। तो तब तक काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। Okay, I'll complete one round of questions that I want to ask them. Then we'll open up for everyone. Shreyan, आपका एक रील बहुत वायरल हुआ था आपने, so do you still hold that those answers के कुछ चेंज हुआ, इवोल्यूशन हुआ कुछ? एटलीस्ट जब मैंने कहा था तब बायजूस का वैल्यूएशन $22 बिलियन था, अभी $8 बिलियन हो गया है। आप नजदीक तो पहुंच रहे हो। और आपका कितना बड़ा? हमारा भी 10x हो गया from where which we pitched at. So definitely closer. However, not looking to buy the Byju's one. Unacademy is still in target. नाइस। सो एक चीज होती है कि ऑफ कोर्स टीवी में आता है तो एक नैरेटिव बिल्ड करता है। Correct. सो आपके केस में आप तीनों में से यू कैन पिक दैट अप। ऐसा हुआ है कि यू कम्युनिकेटेड इन दैट इंटरव्यू इन अ सर्टेन वे, बट टीवी Yeah. में आया तो थोड़ा अलग आया, ऐसा कुछ हुआ? Right. तो पूरा मतलब 2 घंटे का शूट था, 1.5 आवर्स का, एंड उसमें से सिर्फ 12 मिनट दिखाया। तो मैंने पूरे लाइक एक्चुअली मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। मुझे लगता है कि पिच उन्होंने इतना अच्छे से एडिट किया कि जहाँ पे मैं फंबल किया था, जहाँ पे मैं थोड़ा नर्वस था, वो हटा दिए थे। सो दैट्स व्हाई आई वाज पोर्ट्रेड एज वेरी कॉन्फिडेंट एंड super awesome on TV. So which was really good, and I feel thank you Shark Tank team for doing that. However, in normal real life, मैं हूँ confident, but not as much as on show on TV. Okay, awesome. Saurabh? Yeah, so as he rightly said, they edit it very well. So obviously we all are not used to facing the camera day in, day out. So we all get nervous at times and we all get cautious what to speak, what not to speak. So, but kudos to the Shark Tank team, they showed the right content. And even they are aware that, whoever is coming has, done a lot of hard work behind their journeys in reaching where they are. So they also make sure that, nobody is hurt in the wrong manner by coming on the show or, through the reach that they are creating for the entrepreneurs. So I think in that way, they've created a very good industry or a niche in itself. ओके, टीवी में एक चैलेंज होता है कि आप अपने बिजनेस के नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो। कई बार वो इन्फॉर्मेशन लेवरेज होती है, आप बहुत सारे पार्टनर्स वेंडर्स के साथ काम करते हो। यहाँ पे आपने ऑलरेडी बोल के रखा है, फिर अब इसके बाद अलग से बोल रहे हो, फिर उनको पता कि भाई तू तो टीवी में तो ऐसे बोल रहे थे, मेरे साथ अलग क्यों बोल रहे हो। तो ये 2 चीज़ आप बता सकते हो कि आपने जब व्हेन यू मेंशन दोज नंबर्स अबाउट योर बिजनेसेस, आपके क्या डिलेमास थे, व्हाट यू थॉट यू कुड शेयर और यू डिडंट शेयर, और समथिंग ऑन दोज लाइंस। एंड अगर सीजन 3 में कोई अप्लाई कर रहा है तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे विद दिस शेयरिंग नंबर्स अबाउट योर बिजनेसेस? सो मतलब ऐसा ही कुछ सिनेरियो मेरे साथ भी हुआ था, लाइक दे वर आस्किंग टू रिवील ऑल द नंबर्स एंड ऑल्सो लाइक जस्ट 2 days ago I discussed this with my partners कि the sponsors and all कि can we reveal this the number on the television or not. तो they were also surprised कि you made it to Shark Tank the television round. तो उनके साथ डिस्कशन कर पे फिर they said कि they have agreed कि हाँ कर सकते हो, like क्योंकि NDA and all signed होता है, we cannot reveal the numbers, but they fortunately they agreed and फिर I could have revealed that. ओके, श्रेयन आपका एक्सपीरियंस?
पर्सनली तो हमारा बिकॉज इट्स अ B2B बिजनेस 90%, तो वहाँ पे हमारा सीजनल थोड़ा सा हो जाता है. सो लकीली when we pitched on Shark Tank, it was July and it was the peak of the season. We were getting most sales, and मतलब अगस्त में pitch किया. So our numbers last month was really really good. So we could show that. But अगर अगले महीने पूछते same चीज़, you were like, oops. So yeah, Right place at the right time. right That place was at right time. Saurabh, आपके I think it's a subjective matter of numbers. When you talk about numbers, it's not necessary that all the numbers are misused. So sometimes numbers are not the only story behind it. Take an example of any successful story. You know, for example, Physics Wala. We have all heard the success story of Physics Wala. Now everybody sees the numbers that are coming in the news or everywhere, but nobody knows the grind that goes behind it. So just looking at the numbers or listening to the numbers doesn't give you the real story of the company or the startup. So I don't think it makes a difference. बट एज अ फाउंडर आपके डिलेमास होंगे ना, दे वुड आस्क यू और आप Yeah, yeah. कोट करोगे, आप आस्क के आपके आस्क के चक्कर में आप अपना वैल्यूएशन डिफाइन कर रहे हो. तो डिलेमा आपको कुछ था कि ना इतनी जगह नहीं मैं इतना बोलूंगा, ऐसा करूंगा? No, we were very open about it, and we had a preset mindset about it. So I don't think we had any dilemmas about that. So like Shark Tank is a TV show. जैसे सास बहू के TV shows होते हैं, वैसे एक TV show है. एंटरटेनमेंट होना चाहिए. अगर आपके पास स्टोरी लाइन है, एंटरटेनमेंट है, तो जैसे वो नाभि वाला भी आ गया, सिप लाइन भी आ गया. तो मतलब इफ़ यू आर एंटरटेनिंग, इफ़ यू हैव अ स्टोरी टू पिच, दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोर इन द सिलेक्शन. मतलब सॉरी, स्टोरी बनाना जरूरी है. आपका स्टोरी मतलब आपका फाउंडिंग स्टोरी, आपका स्टार्टअप स्टोरी, द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग. एज अ एंटरटेनमेंट मास मीडिया, वो लोग को क्या पसंद आएगा? I would like to add few points over here. Like he said correct कि you need to have a story, but मतलब उसके साथ साथ आपका जो ब्रांड है वो भी किसी स्पेसिफिक जो मतलब यूनिक हो या तो कुछ स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो, वो चीज़ भी मैटर करता है. और आपने जैसे बोला कि रेवेन्यू या सेल्स वगैरह दिखानी ज़रूरी होती है. वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स आए थे जो प्री रेवेन्यू स्टेज पे थे, जिन लोग ने जस्ट स्टार्ट भी करा था, एंड दे वर ऑल्सो आस्किंग फॉर 10 CR और 20 CR वैल्यूएशन ओवर देयर. किसी किसी को मिला जिनका आइडिया स्ट्रॉन्ग था या कुछ यूनिक था, और जिनका मतलब जैसे ही सेड ही गेव फ्यू ऑफ द एग्जांपल, जिनका लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, उन्हें नहीं मिला बेसिकली. तो ऐसा सौरभ, क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ किया था? कल है ना, सुबह शार्क टैंक सोनी टीम से इधर लोग बात करने वाले, ठीक है. लिटरली आप डायरेक्टली उनसे पिच कर सकते हो उनको. एडिशनल वाली चीज की बात कर सकते हैं उनसे. एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो टीम रहती है शार्क टैंक और सोनी की, वो आपको तभी बेसिकली रिवर्ट करती है जब आपका सिलेक्शन होता है या नहीं. अगर आप मतलब उन्हें इफ यू कीप देम आस्किंग कि हमारा आएगा या ना आएगा, दे विल सिंपली से नो कि वी डोंट हैव एनी आइडिया, इट डिपेंड्स कि होता है तो हम आपको बता देंगे, नहीं होता है तो नहीं. तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग ये चीज़ करेंगे. मैं ये बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू आर सिलेक्टेड एंड अगर आपकी पिच तभी बराबर नहीं हुई, तो वो हमें इतना बताना चाहते हैं कि यू प्लीज क्लियर योर पिच, या इस तरह से आपको अप्रोच करना है. हाँ, वो लोग ट्रेन करते हैं. So they have a set process that they follow, and if there are any changes required, they will only come back to you. मतलब आपका कोई रोल नहीं है उसमें. So they will let you know what needs to be changed, what doesn't need to be changed. As you asked the first question, I think it's a TV show after all, right? So you need to be creative in your approach to get the hook from the television show, right? ओके. So I think that's. और एक मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन सबको होता है कि शार्क टैंक आता है, बहुत हाइप होता है, आपके नंबर्स हर एक कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, फिर वो हाइप डाई डाउन हो जाता है. फिर एनी इंटरेस्टिंग थिंग्स यू डिड सो दैट यू नो वो हाइप को कंटिन्यू रखने के लिए? So it depends on what kind of a product or a service industry you are. So for me personally, we did not get that hype overnight because we are not a D2C brand. We are more of a farmer oriented company. Farmer एक show देख के अगले दिन खरीदने नहीं जाने वाला है. So it depends how you encash onto the opportunity of creating your brand image. So what we did is we encashed that brand image to approach various sectors of our own industry,
and we created a niche of our own with the help of whatever reach we got from Shark Tank. So it differs from company to company. करेक्ट श्रेयन एनी इंटरेस्टिंग थिंग्स यू डन एक होता है ना आप रोड शो करते हो आई एम अ शार्क टैंक फीचर्ड फाउंडर एक्चुअली कल ही मैं एक एड शूट किया वेयर दूसरे ब्रांड के लिए बट OLL का लोगो आ रहा था एंड दे वुड बी प्रमोटिंग आवर ब्रांड बट यू नो इट वुड बी देयर प्रमोशन देयर पेड सो इट्स अ वे टू कंटिन्यू द हाइप टू कमिंग ऑन TV अगेन एक्सेट्रा दैट्स अ वे बट पर्सनली वो जो हाइप इवन वी डिडंट गेट ओवरनाइट हाइप वो सिर्फ कुछ स्टार्टअप्स को मिलता है एंड वो जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हाइप है वो आपको आपके ब्रांड देखो ब्रांड ऐसे नहीं बिल्ड होता है कि आप टीवी पे जितना भी ऐड कर दो ब्रांड नहीं बिल्ड होएगा व्हेन समवन यूजेस योर प्रोडक्ट दे टेल अदर पीपल दैट्स द एक्चुअल ब्रांड बिल्डिंग सो you get a few people to use the product, they talk, that's the real brand building that happened after Correct. Shark Tank also. So yeah. एंड कई बार होता है ना कि विजिबिलिटी मिलती है तो क्या बहुत सारे आइडियाज आपने ट्राई करे होते हैं लेकिन अभी विजिबिलिटी आएगी तो वो आइडिया साइड आप कर सकते हो हाँ। कार्तिक आपके केस में ऐसा कुछ हुआ है सो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट एंड ऑल नहीं था तो लाइक सेल्स वगैरह तो कुछ वैसा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग की सर्विस लाइक वी प्रोवाइड सर्विस बट जो हाइक आपने बोला है वी वर द फर्स्ट वंस एंड ओनली वन हु गॉट फीचर्ड ऑन नेशनल टीवी एंड शार्क टैंक इंडिया तो जो कम्युनिटी सपोर्ट था क्योंकि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले टाइम पे इट गोना लाइक गेट नेक टू नेक विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एंड द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तो हम लोगों को जो सपोर्ट मिला फ्रॉम आर कम्युनिटी वॉज इमेंस क्योंकि लाइक लेट इट बी एनी ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर ऑफ द गेमिंग इंडस्ट्री दे सपोर्टेड दे रीशेड आर स्टफ एंड ऑल और जो उससे हम लोग को हाइप मिला दैट वाज क्वाइट गुड और फिर कनेक्शंस एंड ऑल विद द VCs इन्वेस्टर्स एंड द ब्रांड्स वो काफ़ी अच्छी हुई उस चीज़ से तो ये फ़ायदा मिला हम लोग को ओके और एक तो होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो दैट इज गिवन बट आपके केस में आपको ऐसा लग रहा है कि एक आपकी जर्नी ऑफ बीइंग फीचर्ड इन शार्क टैंक कोई चीज़ आप अलग कर सकते थे कि अपना कम्युनिकेशन ऐसा कर सकते थे एनीथिंग दैट यू कुड फिगर आउट दैट इज वन अनदर थिंग आप जो सीजन 3 में अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो दैट इंक्रीजेज द ऑड्स ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड सो दिस 2-part questions So, to the first part, I don't think we can change. I would like to change anything. It's just that we don't have that whole ecosystem of facing those limelight and cameras. So I think nervousness is bound to happen, no matter who you are. So Other than that, I don't think anything needs to be changed. We are good who we are. That's the first part. Second. I think being your own self and conveying your own conviction for your own company is what you need to showcase. I think that's what sells. Nothing else matters. करेक्ट श्रेयन 2-part question कि क्या आप शायद थोड़ा अलग कर सकते हो जो होता है सब अच्छे लेके होता है तो दैट इज गिवन फिर भी व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट क्या लगता है आपको नहीं if I could have changed something I would have definitely changed my website sales funnel added a B2C part and sales उतना जितना भी मिल जाता क्योंकि we got 250K visitors on the website in just 1 month तो इतना सारा ट्रैक्शन लाने के लिए लोग कितना खर्चा करते हैं हमें फ्री में मिल गया एंड उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाए दैट इज समथिंग दैट आई रिग्रेट एंड आई कुड हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ ऑन एंड इम्प्रूव्ड OLL इन टर्म्स ऑफ इट तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो ना मेक श्योर कि आपका पहले फिक्स हो आफ्टर सेल्स आपका ऑपरेशंस रिन्यूअल्स बहुत अच्छा हो फिर उसके बाद आपका सेल्स फिर उसके बाद मार्केटिंग में आप सीजन 3 में आप जाओगे ना तो चलेगा बिकॉज अगर ये पीछे के 2 कन्वर्जन एंड रिन्यूअल ठीक नहीं है ना तो आपके आगे के अपफ्लो भी आके फायदा नहीं सो या दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट ऑसम कार्तिक सो बेसिकली नर्वसनेस तो रहती है लाइक हम लोग के साथ भी हुआ था हाथ पैर काँप रहे थे वहाँ पे जब स्टेज पे थे लाइक वन ऑफ माय पार्टनर वैभव ही सिटिंग ओवर देयर तो ही सेड मतलब फंबल अप हो गया था उससे नर्वसनेस में कि मैं इटावा से हूँ मैं 20 साल से हूँ तो उस चीज़ का मीम भी काफ़ी बना था बट टू लाइक आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हो फॉर द अपकमिंग सीजन यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट विद द नंबर्स एंड ऑल और आपको मतलब जहाँ पे शार्क टैंक में मोस्ट ऑफ द लोग जाते हैं फॉर द मार्केटिंग
तो आप अगर आप अपना वैल्यूएशन सही रखते हो और मार्केटिंग प्लस एडवाइजरी फ्रॉम द शार्क्स अगर वो आ गए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप वैल्यूएशन ऑन ऑल एक लिमिट तक रख सकते हो जहाँ पे वो इंटरेस्टेड हो और आपके में इन्वेस्ट करे, या फिर आपका कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो बहुत यूनिक हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग मिलेगी, बट यू नीड टू बी वेरी लाइक स्मार्ट विद द नंबर्स एंड ऑल। Okay, we'll take one or two more questions and probably we are towards the end of this discussion. Anyone wants to ask a question? I'm Gitesh from ProGrowth Ventures. So if the panel could shed some light on the post-deal making process. So maybe how easy or how difficult is the due diligence process? Are any conditions added to the deal closure? Are any separate requirements in terms of the metrics being required? So anything on the post-deal making due diligence, please. Thanks. Good question. Saurabh. So I think it's very important that your back-end paperwork and everything is very strong. Most of the deals where they fall apart post the Shark Tank season that happens is on the paperwork front. Because whatever they commit on the show, you know, the papers don't reflect the same thing. It's very important that whatever we do, that papers also speak the same language. So I think that's something which everybody needs to work on as part of the preparation in order to get the right deal at the right time. So the delays happen not because a lot of news has been happening off late, you know, कि Shark Tank का fund delay होता है, ये होता है. But it's due diligence that it doesn't get cleared for almost 6 months because the paperwork don't get over. Our due diligence got over within 2 months. So because the paperwork was set right. So, you know, it's completely up to you how well prepared you are in order to get your work done. Shriyant, you want to add? Personally, like it took us a lot of time to restructure the deal. कि they invested at a valuation. We said okay, let's go ahead. Then 6 महीना लगा उनको कि हाँ अभी ड्यू डिलिजेंस चालू करते हैं. Because बाकी सारे स्टार्टअप्स भी है इतने सारे and they have a team, but okay इतना वर्कलोड कौन संभाल पाएगा, right? Humans है ultimately. So by the time they come back, we've already raised at a higher valuation even before Shark Tank airs, and then we cannot justify कि भाई अब क्यों ये आप उनको valuation मना कर देते हो? Yeah, we have to say no. Or you offer them at a higher valuation, which they reject. Okay. Anyone has any question? Yes, sir. Can you share your experience after Shark Tank? That how Piyush helped you after Shark Tank, or how they put in value in your business after investing? So there are two ways to look at it. You know, one is they will see, ultimately they are also business people, right? So one is they will help you if you really want that help from them, and second is you know your business better. They are not here to run the business for you. So they will just help you in terms of getting the right connects if you want. But at the end of the day, it's our business. We know what is the best plus and minuses of our businesses, and we need to take our own decisions. They can only support you if you need some connections. I think that's the only thing that they bring to the table. मतलब वो हर रोज 9 से 6 आपके ऑफिस में नहीं बैठेंगे. ना वो तो है, वो बैठेंगे नहीं, but how they look at it after investing? I personally don't know because मैंने reject. Did you accept? नो नो नो, तो मेरा भी सेम है, बट व्हाट आई थिंक ओवर इज कि जैसा सर ने बोला कि आपका बिजनेस आप ही बेटर समझते हो. दे माइट बी अ हेल्पिंग एंड, बट वो आपको चलना नहीं सिखाएंगे, आपको खुद ही आता है. और ऑब्वियसली जैसा पीयूष ने भी आई गेस लास्ट टाइम बोला था कि हम लोग जितना टाइम इस पे डालते हैं उससे अच्छा हम अपनी कंपनी में डालें तो और बड़ी कर देंगे. तो ऐसा ही कुछ रहता है कि और ऑब्वियसली हेल्प तो करते ही होंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि उनका पैसा उसमें लगा है और उनके भी शेयर्स ग्रो हो रहे हैं साथ में. तो या Saurabh, you wanted to say something? Yeah, so I think in the first season, Ashneer Grover said it very well. भाई तेरा धंधा है, तुझे चलाना है. तो that's the कई बार bottom वो line. अच्छा है, कई बार वो ज़्यादा हेल्प करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. Yeah, that's good. But just एक general idea के लिए कि how are they really willing to help, और पैसा दिया If और need फिर be, निकल yes. गए वैसे. Yeah, If needed. that. Okay. Okay, we take last one or two questions. Last question from my end. Yep, yep.
Firstly, how are you leveraging the marketing which you got from Shark Tank? The reason I'm asking this is the moment you are on air, the market gets more commoditized. You have eventually enough competition running at the same speed or more faster than you because now they've understood from the outside. So, on that particular angle, what are your thoughts on how do you leverage the Shark Tank effect in a long term perspective? एक तो शॉर्ट टर्म होता है जहाँ पे अमन स्पीकर है वहाँ पे ये लोग भी स्पीकर है तो एक्सेप्ट जब बोल रहे हो ऑडियंस बाकी सब में तो सिमिलर टाइप का मार्केटिंग मिल जा रहा है बट सौरभ So I think as far as business leveraging is concerned, it depends upon what strategy are you following to leverage the marketing that you get post Shark Tank. Sometimes it can work negative also, sometimes it can work positive also. So you need to be very careful in selecting how to sort of build onto that marketing effort that has gone behind after Shark Tank. So that conscious effort is required. Any touch upon the competitions which parallelly keep building? So are you keeping an ऐसा eye on ऐसा it? होता होगा ना कि बहुत सारे लोगों का फर्स्ट पिच ऐसा होता है कि जस्ट एडिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन कि हमारा बहुत यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है फिर ऐसा होगा कि बहुत सारे अर्ली स्टेज प्लेयर्स भी आ जाएंगे और एस्टैब्लिश प्लेयर भी सोचेंगे अभी ये बिजनेस वर्क कर रहा है तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप आंसर दीजिए नहीं, your point is right. I mean, personally, even today in the morning, I met on one of the stalls who's building something similar as ours. And for the early stage people, we are like one level higher for them. They treat us like, sir, अच्छा कर रहे हो आप ये वो. But in terms of competition of actual market share, ठीक है? तो ultimately speed is one thing, but also like बिना speed भी आप अपना product बढ़ा रहे हो. You're giving better pricing, you're giving better product, then you continuously have to like जो showcase किया है वो एक part of your business है. Like we showcase the B2C part, 10% of our business. जो 90% है हमारा B2B वो हम लोग ने दिखाया नहीं ठीक से. तो be careful in what you showcase also. पूरा picture मत दिखाओ सबको, वरना फिर easily copyable हो जाएगा. And they edit it so well कि पूरा picture दिखता भी नहीं है. तो मतलब मैं जितना भी समझाऊँ आपको आज के डेट भी जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है मेरा कंपनी 3 साल से चलाने में वो मैं नहीं समझा पाऊँगा एक दिन में या 12 मिनट में या जितने भी. तो अगर आपको आइडिया भी मालूम है जो चैलेंजेस फेस हुए हैं मुझे जो आप फेस करने वाले हो वो आपको नहीं मालूम, जो एडवांटेजेस मैंने लिए हैं जो नेटवर्क्स मैंने टच किए हैं वो शायद आपके पास नहीं होंगे. सो दैट्स द way of competition. Okay, Saurabh. So I would like to add in the morning, in the afternoon, Aman said about impatience and perseverance, right? Not everybody has the same level of impatience or perseverance. So I think it's completely up to an individual how they take it, in what sense they take it. And not all your competitors will always have the same level of dedication towards the goal that you are aiming for. Everybody has different goals and aims in life. So it is completely subjective as to what people are perceiving it to be. Okay. Good luck, कार्तिक, guys. आपका तो वन ऑफ द स्टेटेड गोल था कि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को थोड़ा प्रमोट करना है. तो ऐसा हुआ कि वो दूसरे लोग भी ज़्यादा प्रमोट हो गए जो आपको कम्पीट कर रहे हैं? नो ऐसा कुछ नहीं हुआ. लाइक एज ही सेड कि मतलब आपको अपने नेटवर्क्स एंड ऑल पे भरोसा नहीं. वैसे ही मेरा भी कहना है कि अगर आपको अपने बिजनेस के रूट्स पता है एंड यू हैव ऑलरेडी क्रैक्ड द मेटा कि क्या होता है आपके बिजनेस में और कैसे वर्क करता है, आपके कनेक्ट्स कैसे है कम्युनिटी में. तो बेसिकली जो मेरे कनेक्ट्स है कम्युनिटी में इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग द ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी. और लोग आते हैं बाहर से, उनके पास पैसा रहता है, पैसे डालते हैं, फिर भी आपके रिलेशन कहीं ना कहीं इतने मैटर करते हैं कि पैसा डाल के भी वो 2-3 महीने 5 महीने 1 साल डाल के जाते हैं और फिर चले जाते हैं. उनका पैसा बर्बाद होता है एंड वी स्टिल सेंड ओवर देयर. तो ये सब तो चलता रहता है. कंपटीशन आता है, ऑफ कोर्स मार्केट ओपन अप होता है और ज़्यादा, बट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर रूट्स एंड यू मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद ऑल द मेटा जो आप बिजनेस रन कर रहे हो उसका. शार्क टैंक टीवी शो की बात हो रही है तो ड्रामा होता है. तो आपके केस में भी ऐसा कुछ हुआ है कि शार्क टैंक में फीचर हुआ, थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ गई, तो कुछ ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग हो गई जैसे कॉलेज में कुछ बुला नहीं रहे थे, आपको बोल रहे थे कुछ काम नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, वो लोग स्पीकर बनाते. वो स्टैंडर्ड, आप डिसेंट फाउंडर हो तो यू गेट इन्वाइटेड सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे आप स्पीकर बन सकते हो, तो वो तो है. उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ कि समथिंग चेंज, थिंग्स वर नॉट मूविंग और लेकिन शार्क टैंक के बाद स्टार्टेड मूविंग?
सो वही था कि हमारी इंडस्ट्री काफ़ी न्यू थी और लोगों को पता नहीं था, लेट इट बी रिलेटिव्स, लेट इट बी फ्रेंड्स। तो लोग जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, दे वर परस्यूइंग इंजीनियरिंग एंड ऑल, तो दे वर लाइक कि सब में क्या रखा है यार, तुम पढ़ाई वगैरह पे करो, हम लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, नहीं तो ऐसा कुछ होगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, 2-3 साल रुको, मैं तुम्हें ही हायर करूँगा अपने कंपनी में। तो वो चीज़ उनके सामने जब टीवी पे आई तो दे वर शॉक्ड, क्वाइट शॉक्ड कि ये क्या कर दिया इसने और ऐसा। और जब मैं पहली बार होम टाउन गया अपने आफ्टर शार्क टैंक, तो ऑल द रिलेटिव्स गैदर्ड इन एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे मतलब 30-40 लोग आए फूल माला लेके, जो लोग बुराई कर रहे थे कि यार ये क्या कर दिया इसने लड़के ने, और मतलब अपने दोस्तों को बता रहे एक दूसरे के कि ये देखो हमारा भतीजा है, हमारा ये टीवी पे आ गया, ये कर दिया। तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बट यू नीड टू लाइक, ये तभी पॉसिबल होता है जब आप डेडिकेटेडली अपने पर्पस के लिए काम करो। यू नो कि हमें मतलब आपके जो अगल बगल वाले हैं उनको भरोसा नहीं होगा, बट आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, क्या बनाना चाहते हो, और आप क्या अपने ड्रीम परस्यू कर रहे हो। तो उस पर आपको लगे रहना है और एक दिन आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। Awesome. Sriyan, you are very young, so I'm sure you would have got a lot of such moments. Any interesting one anecdote you can share? Definitely, one which I really resonate to is like I grew up with my nani because my parents were working full time. तो जो मेरी नानी है 10वीं के बाद आई ड्रॉप्ड आउट इन लॉकडाउन ओनली, तो वो हर रोज़ कॉल करके पूछती थी बेटा पढ़ाई कर, एग्ज़ाम दे रहे कि नहीं ये साल, पढ़ाई कर कंटिन्यूसली एवरी डे, लाइक नॉट इवन वन डे वो छोड़ी, ठीक है। एंड टिल द टाइम शार्क टैंक aired on TV, okay, after it aired I didn't even receive one call of padhai kar. She's like, I am proud of you beta. That's it, nothing else. And every day अब आज कितना पैसा कमाया, आज फिर कितना पैसा कमाया. So you definitely the change of perspective in your own family, your own relatives, they obviously love you, but एक एंगल से जो देखते हैं, like it's very personal with my nani for me. Yeah. और वैसे तुम्हारा पढ़ाई का स्टेटस क्या है अभी? I dropped out after 10th, not continuing. Okay, and is that the plan कि आगे जाके MBA करने का कुछ ऐसा? Is that the plan, or you feel that you are open for something? No, that's the plan. Okay. I prefer to learn practically offline and skill based. So living to what we are really presenting at OLL. Okay, awesome. सर आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप पहले से सॉर्टेड थे. कुछ चेंज हो सकता है के बाद? So for me it's a little different because I've been in business for over 17 years. So I have probably been on the other side of the table as well. So for me it was more of a validation of what we are doing, what we are trying to create, and it is more of self-content that we got. Obviously people around are always happy when you get validation and when you get good reviews from such a celebrity status people, or maybe the people who have reached a level of success in their own life. So for me it was more about validation of the work that we are doing. Okay, we were supposed to finish in 20 minutes, पर 35-40 मिनट हो गए. अच्छा. ऑर्गेनाइजिंग टीम मेरे को बता सकती है कब ऐसा ही हमारा राउंड भी गया था शार्क टाइम में. They were like we were supposed to close in 40 minutes and it went till 90 minutes. Awesome. बट यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग हो तभी लोग बैठेंगे, ना लोग चले जाते हैं. बट हाँ, we can take one more question. Anyone has any questions? Yes. Hi Shreyan, Hi. my name is Rajput Jaising here. So my question is to you, like you are so young, okay? You are 18, I'm 20, and person sitting next to you, not person, founder sitting next to you is 22. Okay, right, sir? So my question is that, like, I am also trying to build something. I am very passionate about the startups and all. From day one in my college, I was into this field. Okay, I'm trying to build something new in this city and trying to solve the major problems in sports field. So yeah, exactly. So I just want to know, while you are building OLL, what problems you have faced, because nowadays I do not have any mentor who is guiding me. Okay, I do not have any HR manager or something, because it is totally bootstrapped. So how should I manage things? From where should I take guidance, and how should I manage all these things? Because next month I'm trying to launch my website and all. You want to take this up? And of course, सौरभ का भी 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी बहुत यंग है. So we'll take his input also. नहीं, definitely. मैं 18 साल का हूँ, इनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है. Also, I'm 20. You're 20. Yeah. Yeah, definitely. So
पर्सनली जब मैं चालू किया था मैं 15 साल का था एंड आई स्टार्टेड इन लॉकडाउन, तब जूम का फेज चालू था, तो मेरे आवाज़ से मैं आई डोंट साउंड लाइक अ 15-year-old, तो मैं वीडियो ऑफ करके माइक ऑन करके बात करता था, टीम को समझाता था कि ये करो वो करो ये करो. नो वन रियलाइज माई एज अंटिल इट एक्चुअली केम ऑन द पेपर कि भाई ये 15 साल का फाउंडर है. आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम पीपल गॉट टू नो माई एज. सो बिना एज बताए भी काम चल रहा था, राइट, रेवेन्यू आ ही रहा था. तो अल्टीमेटली आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे, नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट ऑल्सो टू योर पेरेंट्स एंड टू योर फैमिली कि मैं 20 साल में स्टार्टअप कर रहा हूँ. while I am reducing my time in my education or while I am reducing my time in my other hobbies, I am focusing on my passion of startups. ठीक है, बट मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलने चाहिए. लाइक पढ़ाई करते वक्त मुझे मार्क्स मिल रहे थे, पढ़ाई के बाद फिर रेवेन्यू नंबर्स, कुछ नंबर्स आपको दिखाने पड़ेंगे. ओके, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. नंबर्स आप दिखाओगे आपको आसानी से आगे पुश होते मिल जाएगा, बट इफ़ यू डोंट शो नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, घर पे कितना पैसा आ रहा है वो बताओ, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड अल्टीमेटली it should be a problem that you personally want to solve. Like today I want to build something is very vague. I want to build something in sports is also very vague. मतलब आपको क्यों build करना है, आपके अंदर क्यों ये जज्बा है? Because you were a sportsman when you were small or because something, कोई एक स्टोरी होएगा, वो स्टोरी को पकड़ो और उसको आपका लाइफ बना दो. Okay, yeah. I would like to add up something on this कि आपने जैसे बोला कि आपको कुछ like problems है जो sports में you need to solve that और उसका आप startup वगैरह खोल रहे हो, तो वैसे ही मैंने भी face करा है similarly. Like e-sports is quite young in India still, तो like there is not so much education about e-sports and all. तो हमारा क्या था, like मेरा क्या plan था कि जब तक knowledge नहीं मिलेगी वो चीज़ grow नहीं होगी. Like I'll tell you, cricket को भी उतना craze नहीं था before 1983. Once India lift the World Cup, तो the craze was next level. क्योंकि फिर सब लोग follow करने लगे और उसे as a career भी देखने लगे. Like और उससे इंस्पायर होने लगे. तो मेरा भी वही मानना है कि अगर e-sports की मैं एजुकेशन देता हूँ लोगों को जाके, like I have been there to many colleges जहाँ पे मैं इवेंट्स कराता हूँ खुद से, अगर पैसे भी लग रहे हो तो भी जाता हूँ. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी जो भी प्रॉब्लम्स है उस चीज़ की लोगों को, और आपका बिजनेस सॉल्व उसी चीज़ से होगा. अगर जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि क्या है आपकी चीज़, जैसे मैंने बताया कि क्या ई स्पोर्ट्स होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या सिर्फ इसमें एक या दो ऑप्शन है करियर बनाने के या मल्टीपल ऑप्शन है लाइक 10 या 15. तो लोगों को लगता था कि ई स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स में सिर्फ आप एक एथलीट हो और या आप ब्रॉडकास्टर हो तो बस आप ही लोग हो जो, बट बैकग्राउंड में कितने लोग काम करते हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनर, लीगल टीम, सोशल मीडिया टीम, लीग ऑपरेशंस, कास्टर्स, कमेंटेटर्स एक्सेट्रा. तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस है टू एक्सप्लोर इन दीज फील्ड्स. तो आपको वो सब चीज़ें समझानी पड़ेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन्हें लाइक पहले लोगों को समझाना पड़ेगा, आपके आसपास के लोगों से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर किसी कोलैबोरेशंस वगैरह से थ्रू लाइक कॉलेजेस एंड ऑल जहाँ पे यूथ क्राउड ज़्यादा है उनको पुल ऑफ करो अपने तरफ और बस किक करेगा वो चीज़. अभी बेस्ट स्टेज है क्योंकि लाइफ में सिर्फ 2-3 ही प्रॉब्लम है, मेंटर नहीं मिल रहा है, नहीं. जब ज़्यादा समझ जाओगे फिर पता लगे 100 प्रॉब्लम हो गए. Sir, actually we are facing this thing, so like what would you ask? So I have a very different approach to all these things. I feel education actually helps you understand and create your logical side of the brain much better. When I talk education, it's not just the formal education कि भाई मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, but how much you read on a day-to-day basis. Lot of books are out there which can educate you much better than what you could learn in a school or a college. So it's always important to learn how other people have attained success and what you can do differently to attain what you want to do. Second is when you say that you've identified a problem, how do you validate whether that's a problem actually? So first point is really to get that validation that your problem that you are thinking is a problem is actually a problem which multiple people are struggling, and you can scale that up to that extent. जैसे अमन ने बोला कि मैंने पहले 500 करोड़ बनाया, फिर 1000 करोड़ किया, 2000 करोड़ किया, 4000 करोड़ किया. क्या आप वो कर सकते हो? क्या वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है?
I think that's what needs to be answered first before I think anything else. ओके और एक शार्क टैंक के बाद क्या होता है कि इंडिविजुअली आपका भी एक पर्सनैलिटी बन जाता है मोर देन योर बिजनेस एंड यू विल गेट लॉट ऑफ इन्विटेशंस जैसे इस इवेंट का भी इन्विटेशन है सो आपका बहुत सारा टाइम दैट विल टेक अप सो एज अ फाउंडर हाउ डू यू मैनेज दैट पार्ट दैट योर इंडिविजुअल टाइम एंड द टाइम दैट yours required for your business or any mental models that you build के ऐसे ही मैं मैनेज करता हूँ anything you could share on that. Yeah, so it's, I think there is only one resource which is actually limited. We cannot increase time. There are only 24 hours in a day. And that's common for everyone, every person on this planet. Money can be grown, resources other than that can be grown, but time cannot be increased. So you need to manage well within your timelines, what time you are doing, what work. So priorities need to be set for everything. I think everybody speaks time management. I feel time management as well as discipline is very important if you really want to know what to do and what not to do. Shen, any मेरे mental लिए model तो- you build around that? This is my work, like I am branding. OLL. स्पीकर इनविटेशन है तो जाने का. हाँ मतलब मैं हर जगह मतलब मेरे लिए तो वॉकिंग इज ऑल्सो माई टाइम बीइंग इन्वेस्टेड इन कोई तो देख रहा है यार OLL कोई चीज़ है कोई तो सोच रहा है लाइक आई डोंट हैव एनी अदर टी शर्ट एट होम तो आई ओनली वेयर OLL. Okay. सो या कार्तिक. सो बेसिकली मेरा इस पे कहना यह है कि ऑब्वियसली यू नीड टू बी लाइक वेरी मैनेजेबल विद द टाइम एंड ऑल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टफ बढ़ जाते हैं अगर आप एक कंपनी बड़ी ग्रो करते हो तो उसी हिसाब से यू नीड टू बिल्ड योर टीम लाइक अगर आप का प्रेजेंस ना हो उस चीज़ में और यू नीड टू पुट समवेयर ओवर देयर कि जो टेक केयर कर सके चीज़ों के साथ. तो लाइक मेरा भी आज जब ये पैनल हो रहा था उससे पहले लाइक आई हैव शेड्यूल्ड माई एवरी मीटिंग एंड ऑल बिफोर दैट तो वो टाइम मैनेज करना पड़ता है और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है टू बिल्ड द कनेक्ट्स एंड ऑल. तो यू नीड टू बी वेरी व्हाट यू से मैनेजेबल एंड लाइक गुड विद द टाइमिंग्स. मेरे को कोई बोल नहीं रहा कि अपने को सेशन बंद करने का है बट वी कैन कंटिन्यू. हमारा जो है मेनली हम लोग ऑफलाइन स्कूल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू एंड पर्सनली आई डोंट बिलीव इन मतलब पूरे ज़िंदगी बच्चे को मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी पढ़ाना है 10 साल और उसके बाद 4 साल और उसमें ही मेजर करके उसके डीप जाना है एंड बुक से पढ़ना है. तो दीज फ्यू थिंग्स इज़ व्हाट दे आर प्रमोटिंग कि आप और पढ़ो और ठीक से पढ़ो. वेयर आई एम सेइंग कि आप करो और फिर सीख जाओगे. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग प्रैक्टिकली इन स्कूल्स. हम लोग जो आज के डेट में रेलेवेंट स्किल्स है नए स्किल्स है वो पढ़ा रहे हैं. तो कंपटीशन तो नहीं है वो लोग. हाउएवर एनीवन हु इज इन द आईज ऑफ माय कस्टमर पेरेंट के आँख में और कोई मार्केटिंग कर रहा है मतलब अगर वो अनअकैडमी हो बायजूस हो अल्टीमेटली पेरेंट का अटेंशन थोड़ा डिवाइड हो रहा है. उसको भी थोड़ा बायजूस भी दिख रहा है थोड़ा अनअकैडमी भी दिख रहा है थोड़ा OLL भी दिख रहा है. सो वी डोंट स्पेंड आवर एफर्ट्स इन B2C टुडे. दैट्स वाई बिकॉज इतना हाई टिकट वॉल्यूम पे चल रहा है ना इसलिए हम लोग B2B में फोकस करके हमारा रेवेन्यू जनरेट करे प्रॉफिट जनरेट करे देन वी वुड स्टेप इनटू जो नॉर्मल कस्टमर है मासेस है उसके आंखों में दिखने के लिए तब स्टेप इन करेंगे. लास्ट 2-3 minutes ऑफ दिस कन्वर्सेशन क्योंकि 8 बज गए मेरे ख्याल से. सो क्वेश्चन इज इफ एवरीथिंग हैपेंस द वे यू इमेजिन इट वुड बी तो आपका कंपनी क्या होगा? वी स्टार्ट विद कार्तिक. So, like as I have a vision to make to take my company to global level और हम लोग top organization बनना चाहते हैं e-sports की in the entire world, not just India. थोड़ा पावरफुल आंसर देना. तो 10 साल के बाद ये वीडियो जब आप बहुत बड़े कंपनी बनना दो तो 21/7 बोल सकते हैं कि देखो सबसे पहले यहाँ पे बोला था. 1 billion daily active learners is my target. So Awesome. Thank you so much. Punchline Karthik. Yes, Saurabh. So we are trying to double the farm output of India. So I think our aim is never going to be fulfilled because when it gets double, we want to double it more. So
The idea is to keep doubling the farm output, and till it happens, we will keep going. Awesome. Thank you so much, Saurabh. And in case if you want to ask them more question, you can tag them over LinkedIn and they can answer. और इस सेशन का engagement थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए फिर. But thank you so much and thank you so much everyone. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thanks Jatin for everything. It was an amazing